represent Yellow. I started this company back in 2013. The story is pretty simple. I was studying abroad, and I come from a textile family. Everybody around me has something to do with textiles. Either they have looms, or they work in the cotton trade, or they are involved in bed sheets export, or garments export, or denim export. So in my case, it was my father who um, runs a garment manufacturing unit in Faisalabad. And as soon as I finished my degree, he wanted me to come back and join the family business. And I delayed the process for a couple of years, but eventually I came back to Pakistan and joined the family business. Um, but during that time, we were not working in retail in the country. We were not focusing, we didn't have any brands or we didn't have any shops. We were just focusing on exports. So we were just working with some companies in UK and Europe and exporting our t-shirts and polo shirts there. But when I came back, I saw that there was a retail revolution in Pakistan. There were a lot of brands like Khadi and Junaid Jamshed and Outfitters and Breakout doing very well in the Pakistani retail space. So I wanted to do something in the retail space because I had that advantage of having my father's factory to work there. So I convinced my father and I said that I want to start a brand. And he was like, okay, go ahead and make yourself a brand. So when I was, so at that time, I got a merchandiser and I started working on these branding for my brand. Like I had a merchandiser and we developed the whole range. But when it was time for placing the order with the factory said we are fully booked until April. Uh, so I placed an order in November, and they said that in June or May because they had so many export orders. So I said that I had wasted 6 months developing a product range, and I cannot even get those goods made because my factory is fully booked. So I didn't know what to do. But at the same time, there was a company we were working with in Canada worth $200,000, $300,000 of hoodies, and they had given us 50% advance payment for that order. But that company went bankrupt. Right. So we had their goods made, and we had 50% of their payment with us. And we couldn't sell the goods to anyone else because they had their branding or label on them. So it was very hard for us to do. We were in a big dilemma. And at that time, we said, okay, why not try to sell it online? Because nobody else was doing it. And when we went to the local Lotia, who is the guy who buys leftover goods in the garment industry, they offered us like $1 for those hoodies, which costed us about $4 or $5 to make. So the selling it off didn't make sense because at that time a dollar was like 100 rupees. So 500 rupee good sweatshirt was being, we had to sell it for 100 rupees for $1. So we said, okay, let's try it selling it online at cost price of 500. And since then there is no looking back because when we started doing this, a lot of other companies, a lot of my friends who went to school with me in Faisalabad, they all come from textile industry and they all were facing similar problems, canceled shipments or late shipments, or for example, like the dye lot color didn't match with the customer's expectations. So there were a lot of issues with these exporters, and they were having these cash flow problems because the buyer would cancel an order just at the spur of the moment. He'll be like, okay, I placed an order for 10,000. I would like to tell you with the garment industry that we only get about 30% to 50% advance payment. We do not get 100% advance payment. So a buyer in US would place an order for 100,000 t-shirts and would just give us 30% payment for that. So
all the buying power, all the negotiation power is in the hands of the buyer in Europe and America. So if, like, after placing an order, they say we want to cut the order by 20% or 30%, we have to take the hit, even though we have made the garments, or we have bought the fabric for it. So there is a lot of power with the buyer, and a lot of my friends were facing the similar issues, that, you know, there was a late payment, the late shipment, and the customer was like, you know, I want to cancel the order because my season is running out, and I don't want these goods. But the Pakistani supplier has made those goods, and now the customer in Europe doesn't want those goods. So they come to people like us at ELO and sell their goods with us. It's kind of like a last resort for any exporter to get their cash flow right. So that's the story of ELO. And we just started with my father's factory, and now we work with about 50 to 100 factories across Pakistan. ओके राइट, थैंक यू उमर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री अब तो काफ़ी ग्रो कर चुकी है, बट आई नो यू सिंस 2013 एंड 14, यू एग्जिबिटेड एट आवर एक्सपो एज वेल। उस टाइम पे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये था कि देयर वर रिटर्न शिपमेंट्स, अ लॉट ऑफ रिटर्न शिपमेंट्स, बहुत ज़्यादा शिपमेंट्स रिटर्न होते थे, एंड जो ई कॉमर्स स्टोर्स थे वो बिजनेस में आते थे एंड दे शट डाउन देयर स्टोर्स लाइक 2 to 3 months। तो वो क्या चीज थी, व्हाट वाज द मोटिवेशन जिसमें आपने 2 साल 3 साल इस तरीके से सरवाइव किया, कि आपको कैसे लगता था कि ये स्टार्टअप आप इसको रन कर लेंगे और ये सक्सेसफुल हो जाएगा? व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? असल में मैं आपको कहूँगा कि हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो हमें नहीं आइडिया था कि ये सक्सेसफुल होएगा, क्योंकि मैं जितने भी दोस्तों या जो इंडस्ट्री लीडर्स थे उनसे बात करता था, तो वो यही कहते थे, यार लेफ्ट ओवर कौन खरीदेगा। इवन दो कि लाहौर में करीम ब्लॉक और जैनब मार्केट जो कराची के अंदर, वो लेफ्ट ओवर काफ़ी सालों से बेच रही हैं। सो व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट टुक दैट आइडिया ऑनलाइन, कि लेफ्ट ओवर का काम हम ऑनलाइन ले गए। तो रिटर्न्स तो अभी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम लोगों को ये था कि यार मेरा जाता क्या है, क्योंकि हमारी तो फैक्ट्री को एक चीज हो चुकी ना, कि कस्टमर ने क्या, मैंने ये शिपमेंट नहीं लेनी भाई, आपने मेरा ऑर्डर लेट कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता प्रॉब्लम्स होती हैं, तब गैस का मसला था, बिजली का मसला था, स्ट्राइक हो जाती थी, पोर्ट बंद हो जाते थे, बहुत चीजें होती थी, ट्रक्स की स्ट्राइक हो जाती थी। तो हमारे तो भाई जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते थे पाकिस्तान में, और हम गोरे को समझाते थे कि यार ये एक इशू है, बट यू नो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक लिसनिंग टू आवर प्रॉब्लम्स। तो वो कहते थे भाई हमने तो आपको पैसे देने हैं, आप हमें चीज देंगे, टाइम पे देंगे तो हम आपको पैसे देंगे। तो हम लोगों को वो प्रॉब्लम जो मेरी फादर की कंपनी थी उसको आ गई है। अब मेरा तो ये इशू था कि यार मैंने इसको बेचना है, जो मर्जी करूं, मैंने इसको बेच के पैसे कमा के अपने वालिद साहब को वापस करना है। तो आप ये समझिए कि जो शुरू में था कि मुझे इतना, जिस तरह बहुत से बिजनेसेस में होता है ना कि आपने करना ही करना है वरना आप मर जाओगे, वो वाला सिचुएशन हमारे पास कभी भी नहीं थी, बिकॉज आवर मेजर बिजनेस बैक इन 2013, बैक इन 2014, स्टिल नाउ, अभी भी अगर मैं अपने वालिद साहब की कंपनी के साथ कंपेयर करूं तो ये 25-30% शायद शेयर हुआ है येलो का। तो एक तो ये मुझे वो फॉल बैक मिल गया था जो बहुत से, you had nothing to lose, exactly, काइंड ऑफ मेरे पास आई हैड नथिंग टू लूज यार। मेरे तो वालिद साहब को एक प्रॉब्लम आ चुकी है, गोरे ने नहीं लेना, तो वो वाला एक प्रॉब्लम नहीं था। वो जो इन्वेंट्री के इश्यूज थे वो तो प्री एग्जिस्ट करते थे। मेरी कंपनी 2013 से पहले भी बड़ी कैंसल्ड शिपमेंट्स होती थी, लेट शिपमेंट्स होती थी, हम लौटिए को बेचते थे। तो हम लोगों ने एक बड़ी सिंपल सी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना ली थी। उसमें ये था कि बहुत सी शर्टें, आप शायद अभी भी वेबसाइट पे जाएं, कि हम 100 रुपए की या 200 रुपए की बेचते हैं। अब कॉस्ट तो उसकी 100-200 रुपया नहीं है, कॉस्ट तो उसकी ज्यादा ही है, लेकिन हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी ये बनाई हुई है कि यार ये 500 रुपए की शर्ट हमें कॉस्ट की, ठीक है, या 300 रुपए की, जितने की भी कॉस्ट की, अगर हम ये मार्केट में एक लौटिए को बेचने जाते हैं, वो कितने की खरीदेगा? अगर वो 200 रुपए की खरीदेगा तो एनीथिंग अबव 200 इज फाइन फॉर अस। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो 200 रुपए की वरना बिकनी थी, एग्जैक्टली, वो 400 की भी बेच लेता हूँ तो मैं पैसे कमाऊंगा। तो हम कॉस्टिंग है वो ये है हर चीज की, कि यार ये एक्सपोर्ट $5 की होनी थी, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं हुई, तो अब ये लोकल मार्केट का इसका क्या रेट है, और उसके हिसाब से हम रिवर्स कॉस्टिंग करते हैं इसकी।
बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये चीज हमने सीखी कि कैलकुलेटेड रिस्क बिल्कुल डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स को लेना चाहिए, बट यू हैव टू कैलकुलेट, जैसे आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टार्टअप डेफिनेटली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी आपकी टोटल जो टीम साइज है वो 2 लोगों से कितना हो चुका है टोटल? अब तो देखिए हम लोग तकरीबन 107 110 बंदों के अंदर पहुंच गए हैं। मुझे एग्जैक्ट हेड काउंट नहीं पता, लेकिन इट्स 107 टू 100 So you 107। are, yes, you are providing the employment opportunities to 110 people. That means 110 करेक्टली। families. बिल्कुल। That's nice. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ई कॉमर्स स्टोर, बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो देख रहे हैं शो, और वो फिर दे वुड लाइक टू स्टार्ट देयर ओन एज वेल। तो आप जो ये टीम बिल्डिंग करते हैं, या जो आपने कुछ डिपार्टमेंटलाइजेशन की भी होगी कि ये हमारा ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, ये डिलीवरी का है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाउ डू यू मैनेज योर टीम? अच्छा, टीम्स तो यार हमारी बेसिकली अब थोड़ा सा ये था कि हम लोग फैसलाबाद बेस्ड कंपनी है, तो हम लोग फैसलाबाद की जो स्ट्रेंथ्स थी उनको ही यूज करते थे। फैसलाबाद की स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग है, और फैसलाबाद की स्ट्रेंथ के अंदर हम लोग को ये थोड़ी सी लिमिटेशंस आती हैं कि क्रिएटिव काम के लिए हम लोग को लाहौर या कराची या आउटसोर्स करनी पड़ती थी चीज़ें। तो हम राइट। लोग अपनी, अभी तक तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फेसबुक पे हमारी एडवर्टाइजमेंट भी अगर देखें तो वो मोस्टली कुछ हम लोग का इन हाउस है, कुछ और जो हमारे वायरल वीडियोस वगैरह हुई हैं वो हमारी आउटसोर्स ही हुई हैं। तो हम लोग यही देखते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलते हैं कि जी प्रोडक्ट अच्छा, ये गारमेंट अच्छा है या प्राइस सस्ती है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को अब ये कर रहे हैं कि हम लोग एक लाहौर के अंदर ऑफिस हमने ले लिया। तो वी आर ठीक। टेकिंग आवर कस्टमर सपोर्ट टीम और मार्केटिंग टीम टू लाहौर। तो उसके अंदर थोड़ी सी सही इस है। तरह हम लोग डिविजन कर रहे हैं। बाकी सारा तो यही है, बिकॉज आई एम वेरी हैंड्स ऑन एज वेल। मैं रोज दफ्तर जाता हूँ, मेरे रोज नीचे सारी जो टीम्स के बंदे हैं उनको हम लोग मिलते हैं हर हफ्ते। कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ हर रोज मीटिंग्स होती हैं हम लोग की। राइट। जो डेली की मीटिंग है तो वो यही है कि आप थोड़ी सी उनको लिबर्टी भी दो अपनी टीम को भी काम करने की, बट यू नीड टू कीप इन टच विद देम एवरी एवरी डे या एवरी कपल ऑफ डेज। आप उनके साथ मीटिंग करते रहो ताकि आप एक डायरेक्शन पे रहो, एक नोट पे रहो कि उनको और आपका विजन फर्क तो नहीं है। तो मैं बिल्कुल तो ये। ठीक है। ओके। अच्छा उमर, थोड़ा सा ये बताएंगे, अभी जो ई कॉमर्स के अंदर जो बेसिकली मार्केटिंग का जो आपका प्लान है, कुछ हम हमें पता है कि फेसबुक के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग भी लोग करते हैं, गूगल एडवर्ड्स होता है, तो उसकी सर्टेन कॉस्ट भी आती है आपको। लाइक आपने जैसे बताया कि ये शर्ट हमें अगर 200 की कॉस्ट कर रही है, तो जब वो मार्केटिंग के बाद ऑर्डर निकालेगी तो वो 300 की हो चुकी होगी। तो कुछ फिर ये है कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। वो आप कैसे मार्केटिंग कॉस्ट को कैसे आप इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं टू द न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन स्टोर्स? सर वो तो देखिए मार्केटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। अब फेसबुक महंगे से महंगा होता जा रहा है, क्योंकि मैंने तो जब कंपनी शुरू की थी तब तो हम लोग पोस्ट ही लगाते थे, पेड भी नहीं, मतलब बूस्ट भी नहीं करते थे, और वो हजारों बंदों को दिख जाती थी। अब हम्म। वो चक्कर नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने एक इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है कि जी आपने वैसे तो देखे ना, मैं शॉपिफाई या किसी भी अगर आप डैशबोर्ड पे देते हैं आपको वैसे ही नजर आ जाता है कि कितने बंदे ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, कितने बंदे सोशल मीडिया से आ रहे हैं। तो राइट। हम जो अभी अगर मैं देखूं, हमारा खैर रिपीट कस्टमर तो 60% है, जिसको किसी ना किसी तरीके से हमने पहले भी ऑर्डर दिया हुआ, 60% वेरी हो गुड। गया। ठीक। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सोशल मीडिया से देखूं तो हम लोग का ऑर्गेनिक 50% रोज का, अगर कोई बंदा ऑर्डर दे रहा है तो 50% खुद वेबसाइट टाइप करके आ रहा है, और अच्छा, 50% मीडिया और गूगल के थ्रू आ रहा 50% इज अ वेरी गुड नंबर। है। हाँ, 50% हमारा सोशल मीडिया के थ्रू आता है, और 50% हमारा वेबसाइट के अच्छा, थ्रू आता आपने कुछ इस तरीके से भी किया हुआ है कि हम हमें वीकली या मंथली इतना रेवेन्यू आया तो हमने उसका सर्टेन परसेंटेज मार्केटिंग पे लगाना है? है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम 10 से 15% तक एड कॉस्ट के ऊपर रहें 10 रेवेन्यू की। से 15% तक जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक मतलब है। अच्छा। 15% से अगर चला गया तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। राइट राइट राइट। फिर बिल्कुल तो ठीक है। मतलब आपका, क्योंकि आपको मतलब हमारी कंपनी का ये बेस है कि हम लोगों का क्योंकि इट्स अ लो प्राइस स्टोर तो अगर 15% से ऊपर चला जाता है तो फिर हम लोग बिल्कुल, हमें बचता कुछ नहीं है। मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। 10। अच्छा, वी सॉ अ चेंज इन योर मॉडल। पहले आपके अपने प्रोडक्ट्स, अपनी इन्वेंट्री आप सेल करते थे, अब आपने उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया इनटू अ मार्केट प्लेस जिसमें वेंडर्स आके अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं।
तो ये हाउ दिस मॉडल वर्क्स, और इस पे यानी कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं, और ये आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया इस मॉडल ने, या यू आर थिंकिंग प्रीवियस मॉडल? इससे हम लोग का ये बड़ा एक अच्छा आइडिया हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये आइडिया इस तरह इवॉल्व हुआ कि हम लोग काम, तो जब ये शुरू हुआ है तो सिर्फ मेरे फादर की जो गारमेंट्स थे उसी को हम बेचते थे। फिर मेरा जो एक राइट हैंड मैन आप समझ लें, जो हम लोगों के इसको देखता था, उसने कहा यार मेरे मामू के भाई ने कुछ चाइना से चीज़ें इंपोर्ट की हैं, स्टेशनरी की उन्होंने दुकान बनाई थी, और वो अब उनका काम नहीं चल रहा है, एंड ही वांट्स टू सेल इट। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा यार देखो हमारा तो स्टोर गारमेंट्स बेचता है, मैं अब ये बच्चों की पेंसिलें और ये स्टेशनरी किस तरह बेचूंगा। उसने कहा सर आप देख लें, आप बेच के देख लें, अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो उनका क्या बस जा रहा है, जाना। बिल्कुल सही। तो वो यही सीन हुआ कि इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग डिफरेंट। अगर ये हम लोग ना करते तो शायद हम लोग वही अपने वालिद साहब की फैक्ट्री की 2-4 टी शर्टें और पोलो शर्ट और उस इन्वेंट्री से मैं बाहर ही ना निकल सकता। So it बिल्कुल सही allowed है, us to experiment and broaden our प्रोडक्ट बेस। तो इससे हमारी बिल्कुल प्रोडक्ट ठीक। बहुत बढ़ गई और हम एक्सपेरिमेंट कर सके। जिस सो तरह ये आप एज, कुर्तीज, वुमेन्स की ओके, चीजें, बाकी फैक्ट्रीज के साथ प्रोजेक्ट्स, पार्टनरशिप्स, ये सारे काम इस मॉडल की वजह से हम कर सके, वरना हम लोग अपनी बेस को ना बढ़ा सकते। right. So as a result, this message is for all the aspiring entrepreneurs who want to start their own online stores कि अगर आप अपना कुछ प्रोडक्ट स्टॉक करके सेल कर रहे हैं तो it's an added revenue for you to bring people on board with you, और उनके साथ आप प्राइसिंग करके और उनके प्रोडक्ट्स को अपने पास प्लेस करें। ठीक है उमर, अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हाट्स योर प्लान, फ्यूचर प्लान, अपने आप को कहाँ देखते हैं 5 years डाउन द रोड? अच्छा 5 years डाउन द रोड तो हम लोग यार यही देख रहे हैं कि बेसिक हम लोग का मकसद ये है कि जो ये पोलो रिपब्लिक का जो हमारा अपना ब्रांड है जो लेफ्ट ओवर कपड़े से बनता है, इसको एक्सपैंड ज्यादा करें। कि हम सही। लोग डिपेंडेंट ऑन, अब जिस तरह हम लोग कट लेबल करके मैंगो की जीन्स या केल्विन क्लाइन की जीन्स या किसी की बेचते हैं, तो हमें भी पता है कि यार किसी दिन ये गोरों ने आके हम लोगों के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट करना है, बिकॉज राइट। राइट नाउ पाकिस्तान इज नॉट an important market for these guys। तो वो इस वजह से वो ग्रे एरिया है। हम लोग भी कस्टमर को यही कहते हैं यार तू ले ले फिर भाई, जो हमारा गारमेंट पड़ा हुआ है हमारे से एक्सेस बन गया है। अगर हम आपने 20,000 पीस का ऑर्डर किया और हमारे से कपड़ा ज्यादा बन गया तो आप ले लो, क्योंकि हम डिस्काउंट्स तो ऑफर करते ही हैं। बिल्कुल तो ठीक। क्योंकि देखिए ना, कोई फैक्ट्री वाला, मैं अपनी फैक्ट्री क्या, मैं किसी भी फैक्ट्री की पाकिस्तान में बात करूं, कौन सा बंदा एक अपने रेवेन्यू को आग लगाएगा? वो यही कहेगा यार मैं बेच के अपने जितने पैसे कमा सकता हूँ मैं कमाऊं। बट लॉजिकल। वीन इवेंचुअली थिंग्स आर गोना गेट टफ। तो हम लोगों का भी यही प्रोजेक्शन है कि अपना जो ब्रांड है पोलो रिपब्लिक का, इसकी मर्चेंडाइजिंग, इसकी क्वालिटी, इसके स्टाइल, इसके फिट्स के ऊपर हम ज्यादा काम करें, इसकी रेंज के ऊपर ज्यादा काम करें, ताकि खुदा ना खास्ता जो 5 साल बाद या 3 साल बाद ये गोरी कंपनीज ने पाकिस्तान में पेनिट्रेट करना है तो हमें प्रॉब्लम ना कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन विद यू उमर, ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं या ऐसे जो बच्चे हैं जो अपना ऑनलाइन स्टोर, आजकल बहुत ज्यादा कोविड की वजह से भी कुछ न्यूज इसी तरह की सुनने में आ रही है कि जी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम करेगी और इसमें बहुत ज्यादा दम है और इसमें आना चाहिए, तो आपके पास क्या ऐसा मैसेज है अपने उन यंगस्टर्स को देने के लिए कि जब आपने 2013 में स्टार्ट किया, कुछ ऐसी मिस्टेक, कुछ ऐसी गलतियां जो वो ना करें? क्या आपका फाइनल मैसेज है टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान? मुझे लगता है कि यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कस्टमर की बातें सुने, क्योंकि कस्टमर की बातें सुनने से ना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमें सब कुछ पता है, कस्टमर को तो कुछ नहीं पता, हम लोग कर लेंगे सारा कुछ। लेकिन होता यह है कि कस्टमर की आप बात सुनोगे, जैसे मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, वी वर द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस 30 day मनी बैक गारंटी। ठीक है, क्या 30 दिन की पसंद नहीं वापस कर दो हम आपके रिफंड कर देंगे। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि वो फ्लॉलेस है, उसमें मसले नहीं है, उसमें बहुत से मसले वो आ जाते यस। हैं। जिस तरह कस्टमर को हमने गलत चीज भेजी तो हम कहते हैं कि ठीक है। यार आप कुरियर खुद करते हैं, हम आपके पैसे दे देंगे, लेकिन वो फिर हम्म। कस्टमर कहता है भाई आपने गलत भेजी, मैं क्यों कुरियर करूं। राइट। पिकअप पाकिस्तान के अंदर अभी इतने एफिशिएंट नहीं है। लेपर्ड, ये जो कुरियर कंपनीज हैं, ये जब आप उनको कहते हो कि यार ये फलाने कस्टमर के घर से चीज पिक करके हमें दे दो, हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन 15-15 20-20 दिन वो नहीं पिकअप करते, तो नहीं देयर आर अ पिकअप लॉट कर। ऑफ प्रॉब्लम। बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर द फर्स्ट कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन इन पाकिस्तान। उसे चीज नहीं पसंद आई, एक्सचेंज क्या, पैसे वापस लो, हम आपको इजी पैसा से आपके पैसे वापस कर देंगे। तो अगर ये मैं बिल्कुल ठीक। कस्टमर्स की बात ना सुनता
तो ये पॉलिसी ना बनती। फिर हमने ये जो वीडियोस बनाई प्रोडक्ट की खोल के, वो भी इसी तरह बनी कि कस्टमर हमें कहता था कि जी हमें हर रोज फोन आता था या ईमेल आती थी या व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर ही आ जाता था कि जी आप ये ना आइटम खोल के कैमरे से फोटो खींच के भेजें। अच्छा, अब वो मैं नहीं काम कर सकता, हमारे पास वेयर में लाखों पीस पड़ा हुआ है, मुझे अगर एग्जैक्टली कस्टमर ये टी शर्ट खोल के दिखाओ, ये पैंट खोल के दिखाओ, ये जीन्स खोल के दिखाओ, तो हम नहीं कर सकते थे। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, सही बात। तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि खोल खोल के चीजें दिखाओ। तो वी सेड ओके, राइट। वी विल मेक अ वीडियो विद अ कैमरा फोन एंड वी विल सी हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। तो दैट वाज इनोवेशन। रिस्पॉन्स मिला। तो कस्टमर की बिल्कुल। ये पेन पॉइंट्स है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ट्रस्ट की। कस्टमर नहीं ट्रस्ट करता भाई ऑनलाइन को, वो समझता है मेरे साथ फ्रॉड होना है। तो वी नीड एग्जैक्टली। टू, और वो उसकी एक प्रॉब्लम है ना ट्रस्ट की। तो हम ट्रस्ट ट्रस्ट। को किस तरीके कर सकते हैं? तो भाई अगर उसकी बातें सुनोगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करोगे, तभी ट्रस्ट बेहतर होगा। तो ये बहुत एग्जैक्टली। एक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें बिल्कुल चलते चलते जाते जाते एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम रैप अप करेंगे इसको। वो ऐसे यंगस्टर्स जो ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं बट दे डोंट हैव द मनी, दे डोंट हैव द इन्वेस्टमेंट, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, आपके पास उनके लिए क्या ऐसा टिप है कि वो इसको स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करें? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? असल में सर मैं ये कहूंगा कि विद फेसबुक, देखिए मैं अब अगर आप मुझे कहें कि इन्वेस्टमेंट चाहिए फेसबुक पेज बनाने में, तो पेज बनाने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। नो। इंस्टाग्राम का पेज बनाने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। नो। मैंने खुद शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाया है। शॉपिफाई पे जब मैंने स्टोर बनाया था वो $1999 का था महीने का। तो यार तीन सही। हजार रुपया तो महीने का आप अपने कोई इस तरह के पैशन प्रोजेक्ट पे खर्च ही सकते हैं। अब वो ट्रू। मेरा ख्याल है $29 का हो गया। तो यस। यार 4-5 हजार रुपए के साथ आप ये कर सकते हो। हाँ, इन्वेंट्रीज बिल्ड करना एक मसला है, लेकिन आप देखो यार कस्टमर किसी ना किसी चीज को तो बेचना है ना। आप वो दुकानों पे जाके देख लो, बट वो यही है कि आप एक प्रॉब्लम को एड्रेस करो। मैं ये कहूंगा कि ये नहीं कि ये चीज मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं बेचनी है। यू नीड टू, जो आपका स्टार्टअप है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो ही वो एक सक्सेसफुल होएगा, वरना नहीं होएगा। आप मार्केट में गैप एनालिसिस करो कि यार क्या चीज में लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को दिक्कत है, और क्या चीज मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और मैं थोड़े से पैसे भी कमा लूं। क्योंकि मैं बिल्कुल छोटी सही। सी एग्जांपल दूंगा, येलो में मसला ये था कि मेरे वालिद साहब को तो ये प्रॉब्लम थी ना कि लेफ्ट ओवर कैंसिल शिपमेंट हो जाती थी, गारमेंट बच जाता था, तो उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। फिर कस्टमर को भी बिल्कुल। हाई क्वालिटी आइटम चाहिए होता था, एक्सपोर्ट की चीज चाहिए होती थी, ब्रांडेड आइटम चाहिए होता था, उसको हमने एक अच्छी कीमत के अंदर चीज बेच दी। और उस प्रोसेस को फुलफिल करते हुए, उस प्रोसेस को सॉल्व करते हुए हमने थोड़े से पैसे कमा लिए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके एक सर्विस प्रोवाइड करनी है जिससे हम थोड़े से पैसे कमा सकें। तो जो मैजिक फार्मूला है वो विन विन होना चाहिए सारे स्टेक बिल्कुल। होल्डर्स। मैं यही बिल्कुल कस्टमर ठीक है। सप्लायर जो नए इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यही कहूंगा कि ये जो भी सोल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड करना है वो सारे प्रोसेस को देखते हुए कुछ वैल्यू जनरेट करे सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू उमर, आपकी आपने बहुत एजुकेट किया हमें ई कॉमर्स पे। विल डेफिनेटली लाइक टू हैव यू ऑन बोर्ड अगेन फॉर अ सेकंड सेशन, जिसमें हम मजीद कुछ ई कॉमर्स के हवाले से क्वेश्चन सामने लाएंगे इंशाल्लाह। और वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। और मजीद अगर कुछ इंशाल्लाह क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली विल हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू उमर। थैंक यू जी, थैंक यू, खुदा थैंक यू। हाफिज।